Hello students, hello everyone, how you all are doing? I hope you all are doing very great. So guys, this is Devanshu Gupta and I welcome you all to a brand new channel of ours, that is the Let's Create 10 CBSE. Yes guys, the name has been changed. The name is now the Let's Create 10 CBSE. On this particular channel, we will teach you the whole syllabus of the class 10 CBSE. That will make you understand the concepts, will make you understand the concept, also will make you solve the question and answers, and also provide you a great learning experience here. So guys, on this particular channel, what you are going to get here, you are going to get the top educators, top quality of content, and top quality of great learning experience. So guys, please be join with us, and you can subscribe to the channel so that you can get the whole of the your syllabus covered on this particular platform. So guys, this is about myself, a little introduction of myself. Myself Devanshu Gupta, and I am as a work as a faculty at a coaching institute in Kota. I am also a plus educator on Unacademy. On Unacademy, I am going to teach you the particular subject, that is biology for the class 10th. Guys, I also teach social science and biology, that is these both subject I like to teach. And I had done my graduation from the Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore. I have an experience of 2.5 years in teaching, and in these years I had mentored many students for the various competitive exams like NTSC, IJSO, Olympiads, and CBSE boards. So guys, this is about myself. If you also join to sorry, if you also want to learn from me and start accessing to my courses, you can join me on this particular platform, and also you can join me on the plus platform. I also teach there. So guys, what we are going to do, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्या, चैप्टर 1, जिसमें हम कवर कर रहे थे लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक कितने 4 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उन चारों पार्ट में अभी तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक देख लिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या इक्वेशन होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें स्टोमेटा को भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने क्या देखा उसके बाद गाइस, वी हैड आल्सो सीन दी different types of heterotrophic nutrition like holozoic nutrition, then saprotrophic nutrition, और क्या देखा हमने, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इतना हम सब क्या कर चुके हैं, अभी तक जो 4 लेसन्स मैंने लिए हैं उसमें हम कर चुके हैं। लास्ट वाले लेसन में हमने क्या कवर किया था गाइस, वी हैड डिस्कस अबाउट दी activities related to the photosynthesis, and on that particular lesson we have discussed that what are the elements which are very essential for the process of photosynthesis. If such elements, or if those elements are absent in a plant, what happens to the process of photosynthesis in that plant or in that particular part of the plant. So हमने क्या डिस्कस किया था, आखिरी जो चैप्टर था, सॉरी आखिरी जो हमारा पार्ट था, आखिरी लेसन था, उसमें हमने क्या किया है, पार्ट 4 में हमने कवर किया एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे हमने 3 तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया था, जिसमें हमने तीनों में क्या चेक किया। सबसे पहले में हमने चेक किया था कि हाउ सनलाइट इज essential for the process of photosynthesis. Then we discussed about the how chlorophyll is essential for the process of photosynthesis, and then in the third activity we had discussed about the how carbon dioxide is the essential raw material for the process of photosynthesis. तो गाइस, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट तक अभी तक क्या कर लिया है, इन 4 पार्ट्स में कवर कर लिया है। इसके आगे हमको आज क्या करना है, वी विल गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रिशन इन दी एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में क्या मोड होता है न्यूट्रिशन का, और वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, ये हमको आज स्टार्ट करना है। So guys, before going to start the course, I would like to share some information with you guys that you can also crack your CBSE class 10 एग्जामिनेशन। मतलब आपकी क्या है, बोर्ड की एग्जाम आने वाली है। जो भी स्टूडेंट अब 9th से 10th में गए हैं उनको इस साल क्या करना है, CBSE क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम को फेस करना है। और इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और जो भी हमारी एट प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आपको कोचिंग्स में जाना, स्कूल में जाना अभी अलाउड नहीं है, एंड देयर इज ऑल्सो रिस्क। So
एट दिस टाइम व्हेन द स्कूल्स एंड कोचिंग इज नॉट ओपन, ठीक है, आपको सबसे अच्छा जो पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने का मौका मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है? अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के ऊपर आपको इतना अमेजिंग मौका मिल रहा है कि आप अपने प्रिपरेशन को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या करते हैं, कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट ए प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन दी Unacademy, and when you will get the plus subscription on the Unacademy, you will be able to get the amazing benefits over which are available over the app, and you can use such amazing benefits and you can start preparing by at your home। मतलब आप क्या कर सकते हो, सीबीएसई क्लास 10th की जो एग्जामिनेशन है आपकी, उसको घर बैठे परफॉर्म कर सकते, प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो अनअकैडमी के साथ में। अब अनअकैडमी, वाई अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ऐसा क्या है कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो अनअकैडमी है। ऐसे रीजंस क्या है? सो गाइस, रीजंस आर क्वाइट सिंपल, दैट एक तो जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग टू गेट, दे आर गेटिंग ऑन दी अनअकैडमी। मतलब उनको जो अनअकैडमी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया है, उसके द्वारा उसको जो क्या मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, जो उनको क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिल रही है, उससे स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है। सेकेंड थिंग इज दैट वेरी नॉमिनल फीस इज गोइंग टू बी चार्ज फ्रॉम यू। थर्ड थिंग इज दैट आपको कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं जो हर तरह के स्टूडेंट को, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, क्लास 10th की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, 9th की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, या आईआईटी या नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, हर तरह के स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, एग्जाम के सिलेबस को कवर करने में हेल्प मिल सके, साथ ही साथ वो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। इसके लिए आपको अनअकैडमी क्या करता है, कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है विच आर गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो गाइस, आप भी अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको कौन सा अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दैट यू आर गोइंग टू गेट दी लाइव क्लासेस। मतलब यहाँ पे जो भी एजुकेटर्स रहेंगे वो आपको लाइव पढ़ाएंगे। लाइव मतलब आपको इस ऐप के ऊपर लाइव पढ़ाया जाएगा, एजुकेटर वहाँ से पढ़ा रहा है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आपको घर बैठे आप इजी एक्सेस कर सकते हो इन लाइव क्लासेस का। आपको अननेसेसरी इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक देयर इज नो नीड टू गो हियर एंड देयर एंड टू गेट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। सेकेंड थिंग इज दैट आप क्या कर सकते हो, अपना टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो। आप अपने कंफर्ट को कहीं नहीं छोड़ना, ज़रूरी नहीं है आपको कोचिंग लेने के लिए, आप घर बैठे ही अपने फ़ोन, पीसी या टैबलेट के ऊपर क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो एक तो आपको क्या मिल गया, इजी एक्सेस मिल गया। दूसरा आपको मिलेगी लाइव क्लासेस। तीसरा आपको क्या मिलने वाला है, एक रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाउ? तो रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप जो है अपने एजुकेटर के साथ क्या कर सकते हैं गाइस, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में इंगेजमेंट शो कर सकते हैं, साथ ही साथ उनसे क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो गाइस, यू आर गोइंग टू गेट दिस अमेजिंग बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ द लाइव क्लास। सेकेंड थिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर इज द लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। मतलब आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे कुछ लाइव टेस्ट और क्विजेस को कंडक्ट किया जाता है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनको कराने का मोटिव जो है बेसिकली वो क्या होता है, वो ये होता है कि इससे क्या चेक किया जाता है, आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है और आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट किया जाता है। मतलब कि आपकी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर कितनी पकड़ है, कितनी कमांड है, उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस को कंडक्ट कराया जाता है, ताकि आपको क्या हो सके, आप सेल्फ चेक कर सके, सेल्फ इवेल्युएट कर सके अपनी प्रिपरेशन को, और साथ साथ खुद ही क्या कर सके, एनालाइज कर सके कि हाँ मुझे किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन कौन से टॉपिक्स जो है मेरे हैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। सो इस तरीके से लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको मिलते हैं। तीसरा आपको मिलता है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। मतलब यहाँ पे जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि आपको हर चीज़ जो है उन कोर्सेज के अंदर अवेलेबल कराई जा सके। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको उन कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, मेगा क्विज या फिर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एक ही कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ एजुकेशन मिलने वाली है, या फिर आपको जो सिलेबस है वो वैरायटी से अलग अलग तरीके से कवर कराने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। सो इस तरीके से कोर्सेज को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिज़ाइन किया गया है।
साथ ही साथ आपको मिलेगा गाइस अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जो आप लाइव क्लासेस है आपकी उनको इन फ्यूचर भी क्या कर सकते हो, बार बार 1000 बार देख सकते हो। देर इज नो लिमिटेशन ऑन दी क्लासेस, मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक बार देख लिया क्लास आपका खत्म हो गया, आप फ्यूचर में भी अपने रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, इन लाइव क्लासेस को देख सकते हो। दिस लाइव क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड, विल बी सेव्ड इन द प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर। मतलब रिकॉर्डेड क्या होगा, रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में या रिकॉर्डेड कोर्सेज के फॉर्म में क्या हो जाएंगी, ये सारी लाइव क्लासेस है जो अनअकैडमी के ऐप के ऊपर क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, और आप वहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स है जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। दैट इज आपको वहाँ पर डाउट सेशंस कराए जाते हैं, आपको स्ट्रेटेजीज सिखाई जाती है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस पर्टिकुलर वे में आपका क्या अप्रोच है होना चाहिए एग्जाम के लिए उसको कवर करने में। साथ में आपको गाइडेंस दिया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती है ताकि आप क्या कर सकें, कम याद करके, कम चीज़ों को मेमोराइज करके आप क्या कर सकें, ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके, ज़्यादा चीज़ों को याद रख सके। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे, अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो गाइस दीज आर दी वेरी वेरी अमेजिंग बेनिफिट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लास 10th एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो आप भी इन अमेजिंग बेनिफिट्स को पा सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गेट ए सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी प्लस। इसके साथ साथ ही गाइस आपकी जो प्रिपरेशन यहाँ होने वाली है वो होने वाली है टॉप एजुकेटर्स के साथ, मीन्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद दी टॉप एजुकेटर्स। अब देन हाउ दिस, वाई वी कॉल देम टॉप एजुकेटर्स, हम उनको टॉप एजुकेटर्स क्यों बोल रहे हैं, सो दिस इज वाई बिकॉज दीज आर द टीचर्स और दी फैकल्टीज विच आर कमिंग फ्रॉम दी बेस्ट एवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ दी ऑल ओवर द इंडिया। मतलब जो इंडिया के जितने भी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको जो एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर द सीबीएसई क्लास 10th। ऑल्सो द नीड दैट व्हाट इज द गाइडेंस इन स्ट्रेटेजी द स्टूडेंट सीक्स फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़, किस तरीके से चीज़ों को सिखाना चाहिए, कौन कौन से गाइडेंस किया, किस किस जगह स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या है, ये जो एजुकेटर्स है आपको शॉर्ट ट्रिक्स और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी जो अप्रोच है सब्जेक्ट को लेके उसको उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में क्या हो सके, अच्छा रिजल्ट मिल सके, यू कैन गेट सक्सेस or very good success in your class 10 CBSE boards. So these educators are going to help you in your preparation and they will be providing you the top level guidance and the strategies, so by which you will be able to perform well in your examination. अब गाइस देखिए आपको यहाँ पे जो सिलेबस कवर कराया जाएगा क्लास 10th के लिए वो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कराया जाएगा। मतलब आपको हर सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपके जो भी कोर्सेज रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहते हैं। तो इन दिस वे द सिलेबस विल विच वी आर गोइंग टू कवर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, इट इज़ इन दी कॉम्प्रहेंसिव मैनर। मतलब आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूट पाए, आप अपनी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सके और आपको सब चीज़ें जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एक जगह पे लाके रख के दे दी जाए। इस चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ पे सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिव मैनर में कवर कराया जाएगा। अब देखिए गाइस, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ना चाहते हैं और अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में जाइए, फ़ोन में अपने प्ले स्टोर को खोलिए। प्ले स्टोर को खोलने के बाद आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को वहाँ पे टाइप कर दीजिए सर्च बार में। व्हेन यू टाइप द अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन दी सर्च बार and install the app, after you install the app you need to do, you need to log in into the app। मतलब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के साथ साथ ही आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको एक वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मैनेज गोल करने का। मतलब आपको गोल सेट करना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे सेट करना है फॉर दी सीबीएसई क्लास 10th। एंड वंस यू विल सेट दी गोल फॉर दी सीबीएसई क्लास 10th, द कोर्सेज और दी ऑल द कोर्सेज विच आर रिलेटेड टू द क्लास 10th विल बी अवेलेबल ऑन योर ऐप। मतलब आपको क्या हो जाएंगे, वहाँ पे दिखने लग जाएंगे जितने भी कोर्सेज जो हैं जो क्लास 10th की एग्जामिनेशन के या फिर जो क्लास 10th से रिलेटेड उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर भी हमसे सीधे जुड़ सकते हो। आपको क्या करना है, यूआरएल में जाके क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर देना है और आप हमारे ग्रुप में सीधे जुड़ जाएंगे। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो।
हमसे कोई क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हो और अपने जो डाउट्स है उनको रिजॉल्व कर सकते हो। सो गाइस आपको क्या करना है, यूआरएल में जाके जो लिंक है इसको टाइप कर देना है या फिर इसको कॉपी कर देना है, एंड यू विल बी एबल टू टॉक टू अस और ज्वाइन टू अस एंड कॉन्टेक्ट टू अस। सो गाइस अब बात करते हैं फीस की। तो आपकी जो फीस है क्लास 10th की सब्सक्रिप्शन आपको अगर लेना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फीस जो है आपको पे करनी होगी अनअकैडमी के ऊपर। वो फीस कितनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, या आप जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, फीस के नाम पे आपसे एक मोटी रकम वसूली जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा आपसे चार्ज किया जाता है, और उसमें भी आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं मिल पाती है, इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। लेकिन अनअकैडमी पे ऊपर आपकी क्या है, आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स वापस से मिलने वाले, कुछ ऐसे आपको फ़ायदे मिलने वाले जिससे आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा यहाँ पे। तो क्या है वो, तो गाइस अगर आप 12 मंथ के लिए क्या करते हैं, अनअकैडमी के ऊपर क्या करते हैं, बाय करते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, मतलब 1 साल तक क्या करेंगे, अगर आप अनअकैडमी के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, दैट यू नीड टू पे दी अमाउंट ऑफ 12,500 रुपीज़। मतलब आपको कितना पैसा चार्ज होगा, आपकी जो फीस है वो 12 मंथ के लिए कितनी बनती है, सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपीज़ फॉर दी होल 12 मंथ्स, मतलब फॉर one whole year you can study in the 12,500 rupees for all the subject you can prepare on the Unacademy। ठीक है, तो एक तो आपका क्या हो गया कि आपकी फीस कम लग रही है, दूसरा साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने वाला है। मतलब इतनी कम फीस होने के बावजूद भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, द फोकस विल बी ऑन दी प्रोवाइडिंग यू ए टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड दी ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे एक जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है पढ़ाई का, वो अलग ही लेवल का आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। आपको जो पढ़ाई है वो एक तरीके से फन लगने लगेगी, मतलब आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है अनअकैडमी के ऊपर क्या है, एक तो आपका डबल बेनिफिट्स है, एक तो आपकी फीस कम लग रही है, साथ ही साथ आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आपको जो है पढ़ाई से प्यार हो जाए, आपको पढ़ाई क्या लगे, अच्छी लगने लगे, साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट के साथ चुटकियों में खेल सके, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो you are going to get the top quality of education in this particular nominal fees also। तो गाइस इसके बाद भी आपको एक और जो फ़ायदा है यहाँ पे वो ये मिलने वाला है कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मेरा कोड रेफरल कोड को यूज़ करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, इस अमाउंट के ऊपर भी जो है 12,500 रुपीज़, इसके ऊपर भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको जो फीस ऑलरेडी कितनी कम थी, 12,500 रुपीज़ तक जो कितनी लिमिटेड थी, उसके आगे भी आपको क्या मिलने वाला है, और बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब जो फीस है ये और कम होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेरा रेफरल कोड को अगर आप यूज़ करते हैं दैट इज़ DGCBSE, तो आपको सीधे सीधे 10% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब डिस्काउंट के बाद जो आपकी नेट प्राइस होती है फॉर दी होल मंथ, होल 12 मंथ्स या फिर 1 साल के लिए आपकी जो कितनी होती है फीस होती है, वो होती है ओनली 11,250 रुपीज़। In this particular amount you can prepare for the whole 5 subjects in the Unacademy Plus। मतलब आज आप क्या कर सकते हो, Unacademy Plus के ऊपर 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो इतने से अमाउंट के ऊपर। आपकी अगर हम देखें तो मंथली कितना पैसा आपको चार्ज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 938 रुपीज़। दैट इज़ सो लो, सो लेस, मतलब बहुत चीप है, बहुत नॉमिनल है और बहुत अफोर्डेबल है कि हर कोई बच्चा क्या कर सकता है, इसको अफोर्ड कर सकता है। आपको अननेसेसरी ट्रेवल भी कहीं नहीं करना है, आप अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको क्या करके दिए जा रहे हैं, एक साथ दिए जा रहे हैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान में। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस दैट गाइस गो गेट द सब्सक्रिप्शन, यूज माई कोड। इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड यू आर गोइंग टू गेट दी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर फाइनल अमाउंट, एंड आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन दी योर क्लास 10th एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो गाइस गो गेट अ सब्सक्रिप्शन, डोंट वेस्ट द टाइम। आपको प्लस के ऊपर इतने बेनिफिट्स है कि आपको क्या क्या मिलेगा, जो 4 बेनिफिट्स, लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस किए जाएंगे, आपको ट्रिक्स एंड क्या शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएगी, साथ साथ आपको गाइडेंस सिखाया जाएगा और आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी कि आपको एग्जाम को किस तरीके से एस करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो गाइस अगर आप क्या करना चाहते हैं, 6 महीने या 12 महीने या 24 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको EMIs भी अवेलेबल है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज नहीं किया गया है, तो आप EMI के थ्रू भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब गाइस आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेस है, कौन सा मोड है, किस तरीके से एनिमल्स क्या करता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, मतलब किस तरीके से वो खाना अंदर लेता है, मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेस इट। मतलब एनिमल्स जो है जितने भी हमारे, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को आज हमको पढ़ना है। तो इन दी 1.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मतलब व्हाट इज दी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स है क्या, ये हम किस में डिस्कस करने वाले हैं, इन दी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स। इन द सेकेंड 1.2 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हम क्या डिस्कस करने वाले गाइस कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि अमीबा, उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। उसके बाद हम 1.3 में देखेंगे न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स एज ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस में किस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, उसको हम इन दी 1.3 वाले पार्ट में हम देखेंगे। आज हम जो दिखने वाले हैं वो सिर्फ यहाँ तक कहाँ देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल तक। मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ तक आज हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर लेसन में क्या करेंगे गाइस, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो है क्या। तो गाइस पहले मैं वापस से रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या। सो इट इज द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड इनसाइड अवर बॉडी। मतलब क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन को प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को क्या लेना, खाने को अंदर लेना अपनी बॉडी के अंदर, और उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है गाइस, न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन में, तो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। मतलब एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे, कौन कौन सी ऐसे प्रोसेसेस है जिस जरूरी है एनिमल्स को न्यूट्रिशन प्राप्त करने में। तो उसके बारे में हम आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो इन द 1.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बेसिकली है क्या, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। गाइस एक मिनट दीजिए प्लीज। सो गाइस वी हैड डिस्कस्ड दैट दो तरह के मोड होते हैं किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए। एक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। मीन्स गाइस कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जिसमें प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमने चार जो हम इसके पहले के पार्ट से उसमें यही डिस्कस किया है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं। तो आपको पता चल गया है अभी तक कि प्लांट्स में क्या होता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इट इज दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज फाउंड इन दी प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है गाइस, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है किसमें, सारे एनिमल्स में। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर में है क्या, तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको कि आखिर में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। So heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which the organism cannot prepare its own food। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या अपना खाना खुद से नहीं बना पाते गाइस। क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज दे लैक दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर दी ट्रैपिंग ऑफ लाइट। मतलब वो क्या लैक करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है कौन सा, क्लोरोफिल, वो उनमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते सन से जो उनको मिलती है, और उसको यूज नहीं कर पाते। तो बेसिकली आपको समझ में आया एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक क्यों होते हैं।
अब इनको अगर खुद से फूड नहीं बना पा रहे हैं, जो एनिमल्स है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है अगर नेचर में, मतलब खुद से खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो अब उनको खाने की जरूरत तो पड़ती होगी, बिकॉज एट लास्ट व्हाट आर दे आर दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में तो उनके अंदर सेल्स होंगे, सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी गाइस, पड़ेगी ना गाइस, क्योंकि सेल्स के अंदर तो क्या चलती रहती है, कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है। और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अगर सेल को अच्छे से परफॉर्म करना है, हमारी बॉडी अगर अच्छे से फंक्शन कर सके, उस चीज़ के लिए सेल्स की जो प्रोसेसेस है, उनके अंदर की जो एक्टिविटीज़ है, उनका रन होना काफ़ी ज़रूरी है। अब उन सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं, अपना खाना जो है खुद से नहीं बना पा रहे हैं। तो अब वो क्या करेंगे, दे विल टेक दी फूड फ्रॉम दी डिफरेंट सोर्सेस, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने फूड सोर्स के लिए। मतलब उनको जो खाना चाहिए, जो भी उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो फूड से फुलफिल करेंगे। एंड फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे गाइस, दे विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स। मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपना खाना वो खुद से बना सक रहे हैं, तो उनमें क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद से बना सक रहे हैं। तो यहाँ एनिमल्स क्या करेंगे, वो प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली हो, किस चीज के लिए, टू ऑब्टेन देयर फूड। सो गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, वो किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो खाना हमको कहाँ से मिल रहा है, प्लांट्स को मिल रहा है, लेकिन व्हाट आर दे, वी आर दी एनिमल्स। एनिमल्स, अब गाइस ये मत कहिएगा कि सर आपने हमको जानवर बोल दिया या फिर एनिमल्स बोल दिया, कि हम तो ह्यूमंस है। गाइस यस, वी आर ह्यूमंस, बट क्या है, वी आर कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। मतलब जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जितने भी क्या होते हैं, फाइला होते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी किसके अंडर में आता है, किंगडम एनिमलिया के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम किसके अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे समहाउ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। सो गाइस, समझ में आया आपको। अब देखिए गाइस, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक के भी हमने पढ़े थे जब हमने पार्ट 2 पढ़ा था इस पर्टिकुलर कोर्स की सीरीज का। उसमें हमने क्या करा था कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितने भी हो सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरासाइटिक होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है और होलोजोइक होता है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, मतलब जो भी एनिमल्स है उसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है या तो, या सेप्रोट्रॉफिक होता है, हो सकता है। लेकिन जो एनिमल्स है वो किस किस तरीके के होते हैं, वो होलोजोइक होते हैं। अब होलोजोइक मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, सॉलिड फूड के ऊपर क्या करे, फीड करे, मतलब क्या करे, सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करे, खाए, और उसको बाद में बॉडी में जाने के बाद यूटिलाइज कर ले। उस चीज को कहा जाता है, या फिर उन सारे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है क्या, होलोजोइक एनिमल्स। समझ में आया आपको। अब देखिए गाइस, ऑल द बेसिक स्टेप्स ऑफ किसकी, होलोजोइक न्यूट्रिशन आर सेम इन यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें क्या एक सेल पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो बॉडी बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, सिर्फ सिंगल सेल की बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, बहुत सारे सेल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी उनकी बॉडी क्या होती है, बनी हुई होती है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर का मतलब क्या होता है और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। तो चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो, सेलुलर हो या क्या हो, इन मल्टी सेलुलर हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस। सो क्या हो, या तो वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जिसमें सिंगल सेल है, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, जिसमें क्या हो, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हो। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चाहे वो सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उनमें जो बेसिक स्टेप्स होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, वो कैसी होती है, सेम होती है। अब ऐसी कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है, बेसिक स्टेप्स, किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो गाइस डिस्कस करते हैं द स्टेप्स इन दी होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमको देखने को मिलती है। तो गाइस सबसे पहला किया जाता है इंजेशन और इनगल्फिंग। मतलब क्या किया जाता है,
कि खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? अपने माउथ के द्वारा। किसके द्वारा? ये माउथ के अंदर। मुझे खाना खाना है अभी, तो मैं क्या करूंगा? मेरा मुंह क्या करूंगा? ओपन करूंगा। ये मैंने ओपन किया, ये मैंने खाने को क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। तो क्या किया मैंने यहाँ पे? इंजेक्शन किया। किस चीज का इंजेक्शन किया गाइस? फूड का इंजेक्शन किया। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मतलब क्या होता है गाइस? खाने की प्रोसेस, जिसमें हम क्या लेते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाने को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेक्शन और इनगल्फिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? क्या किया मैंने? ये मेरा खाना है, सपोज मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में मेरा क्या है? खाना है। और मुझे क्या करना है? इसकी अपनी बॉडी के अंदर लेना है। तो व्हाट आई विल डू? आई विल टेक द फूड एंड कीप इट इन टू द माउथ। क्या करूंगा मैं? माउथ को ओपन करूंगा और खाने को मैंने रख दिया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम क्या करें? खाने को अंदर ले रहे हैं बॉडी के अंदर, उसको कहा जाता है इंजेक्शन। क्या कहा जाता है गाइस? इंजेक्शन। इट्स नॉट इंजेक्शन जो आपको डॉक्टर लगाते हैं, इट्स इंजेक्शन। क्या होता है गाइस? रिपीट करो मेरे साथ, इंजेक्शन। वेरी गुड। सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी प्रोसेस जो होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो होती है डाइजेशन। क्या होता है गाइस? डाइजेशन। अब डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर एंड सोल्यूबल फॉर्म्स। मतलब जो भी खाना क्या होता है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? जो भी एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनके अंदर ये जो स्टेप है वो क्या होती है? कॉमन होती है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी आप फूड खाते हो, सपोज आज मैंने क्या की? 2 चपाती खाई, साथ साथ उसके क्या किया? कुछ दाल मैंने खाई अपने खाने में। तो मैंने जो खाना खाया है अंदर, अब क्या ये इसी फॉर्म में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, इसी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा? जैसे मैंने रोटी खाई तो वो उसी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाना चाहिए, जो मैंने दाल खाई वो उसी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होता है। कि बिकॉज जो भी सेल्स है वो इस फॉर्म में क्या होते हैं, जो भी आपका फूड मटेरियल है उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, नहीं क्या हो पाता है, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाता है। तो वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो पाए और सेल्स को क्या करे? अच्छे से क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, यूटिलाइज कर सके। उस चीज़ के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब किसमें? उसको ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे, किससे? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इसको ब्रेक डाउन करके हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? सिंपल, स्मॉलर और सोल्यूबल फॉर्म्स में। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो ब्लड में सोल्यूबल हो जाएगा। ब्लड में सोल्यूबल हो जाएगा तो वो अब क्या कर सकता है? जो भी आपके डिफरेंट बॉडी सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? उसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गाइस सेकंड स्टेप इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन विच we do the breakdown of large and complex molecules into smaller, simpler and soluble forms. अब देखिए गाइस, तीसरी जो स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ द डाइजेस्टेड फूड थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल टू ब्लड और बॉडी फ्लूइड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं? जो भी इंटेस्टाइन में के अंदर क्या हुआ अभी तक, फूड डाइजेस्ट होने के बाद, स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है गाइस। आगे हम देखेंगे बहुत अच्छे से, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तब हम इसको अंडरस्टूड करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे आता है? इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर आता है, या फिर इंटेस्टाइन की वॉल के वहां पे आता है। उसके बाद क्या किया जाता है गाइस? उसके बाद ये किया जाता है कि जो भी ब्लड होता है हमारा, जो फ्लो हो रहा है इंटेस्टाइनल की किसके अंदर? वॉल के अंदर, या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड है हमारा, वो क्या करेगा? ये जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो फूड क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया है। किसमें? सिंपलर, स्मॉलर एंड सोल्यूबल फॉर्म में। जो क्या हो गया है? हमारा फूड कन्वर्ट हो गया, मतलब बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो गया हमारा फूड, उसको क्या किया जाएगा? ब्लड उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड उस फूड को एब्जॉर्ब जब कर लेगा, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब जब कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करता है बॉडी में। तो बॉडी में फ्लो होगा जब तो जिस जिस सेल को क्या है? उस फूड की जरूरत है, उस ग्लूकोज की जरूरत है, ब्लड क्या करेगा? उन पार्ट्स में उन सेल्स को क्या कर देगा? फूड मतलब ग्लूकोज ले जाके ट्रांसपोर्ट कर देगा। आ गया समझ में गाइस? क्योंकि सेल्स तो हमारे क्या है?
पूरी बॉडी में हमारे क्या है, अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको क्या कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो क्या हो जाए, ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। तो उस चीज़ को हमको एब्जॉर्ब कराना है अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी खाना हम खा रहे हैं बेसिकली, चाहे हम क्या खाएं, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फूड वट एवर वी आर ईटिंग, इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू दी सिंपलर स्मॉलर एंड सोल्यूबल फॉर्म। मतलब किसमें, उसको सिंपल तरीके से सोल्यूबल पार्टिकल्स में या सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो ब्लड के अंदर क्या हो सके, सोल्यूबल होके या फिर बॉडी फ्लूइड के अंदर सोल्यूबल होके यूज किया जा सके। सो गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई होप यू आर, आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिए इसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जब सेल्स तक क्या पहुंच गया है, जो ब्लड के थ्रू सेल्स के ब्लड के थ्रू क्या किया गया, फूड को ट्रांसपोर्ट किया गया। अभी जो फूड हमने ट्रांसपोर्ट किया वो जब क्या कर लेता है, जो सेल है वो यूज कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या किया हमने, कि जो भी हमने क्या किया था, खाना एब्जॉर्ब किया था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो ब्लड के अंदर हमने क्या किया था, खाने को एब्जॉर्ब किया था, उसको डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाना और उसको यूज करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। इसके साथ साथ ही गाइस आखिरी स्टेप होती है इजेशन। इजेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड मैटर इज एक्सपेल्ड आउट। मतलब कि जो भी आपने खाना खाया है उसमें से कितना आपका डाइजेस्ट हुआ है, कितना आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, और कौन कौन सा ऐसा खाना है जो आपकी क्या हुआ, वेस्ट हो गया या फिर आपकी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, उस वाले खाने को कहा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। क्या कहा जाता है गाइस, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो वो फूड को क्या करना है हमको, अब इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो उसको क्या करना है, हमको बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है उसको कहा जाता है इजेशन या एक्सक्रीशन। सो गाइस, आपको समझ में आया कि कौन कौन सी 5 स्टेप्स होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। पहली स्टेप कौन सी होती है गाइस, इनगल्फिंग और इंजेशन, जिसमें क्या किया जाता है कि खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है। दूसरी जो स्टेप होती है वो क्या होती है गाइस, डाइजेशन होती है, जिसमें क्या किया जाता है, फूड को या फिर जो हमारी सब्जियां होती है उनको क्या किया जाता है, बताओ मुझे। तो उनको किया जाता है डाइजेस्ट, ताकि वो क्या हो जाए, सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एब्जॉर्प्शन में जब वो क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो गया है फूड का, वो सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होगा, ब्लड और बॉडी फ्लूइड जो है हमारे, जैसे कि लिम्फ हुआ, वो क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है उसको क्या करना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स है हमारी बॉडी में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पार्ट्स पे, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना, उसका यूटिलाइज करने को कहा जाता है एसिमिलेशन। और इंजेशन मतलब होता है, सॉरी, इजेशन मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड मैटर जो है, मतलब जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने फूड मटेरियल लिया है अपनी बॉडी के अंदर, वो उसमें से जो भी पार्ट्स जो है, जो क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया, जिसमें से एब्जॉर्ब हो गया है ऑलरेडी खाना, वो खाने को हम यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी रहता है जो क्या होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस चीज को क्या करना है, हमको खत्म करना है या फिर उसको बाहर निकालना है अपनी बॉडी से। तो हमको कौन सी प्रोसेस होगी, इजेशन की। तो गाइस, दिस इज अबाउट द बेसिक स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो गाइस, हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक, क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, कि इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड हाउ द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर देयर फूड नीड्स। मतलब फूड की जो नीड्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए प्लांट्स जो है, सॉरी, एनिमल्स जो है वो किस तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। उसके बाद हमने देखा कि चाहे किसी भी तरह का एनिमल हो, उसमें चाहे मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है या फिर मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मतलब या तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो कुछ एनिमल्स में, चाहे वो क्या हो, सेप्रोट्रॉफिक हो, लेकिन सबके अंदर क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम रहेगा, मतलब दैट इज
वन थिंग दैट इज कॉमन इज दी होलोजोइक फूड, मतलब जो फूड लेने वाले हैं या फिर उनके अंदर जो फूड पार्टिकल जो जिसको एब्जॉर्ब करने सॉरी जिसको यूटिलाइज करने वाले हैं वो किस तरीके का होगा, होलोजोइक होगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उनमें वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, उसकी कौन कौन सी बेसिक ऐसी 5 स्टेप्स होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज व्हाट, फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन विच the organism intake the food inside its body. In the second step, that is digestion, the food is converted into the simpler, smaller and soluble molecules, मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है फूड का। तीसरा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ब्रेक डाउन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद फूड को ठीक क्या किया जाता है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी ग्लूकोज बना, जो भी हमारा क्या बना, फूड बना उसको, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब उस फूड को जो क्या हो गया है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, उस पर्टिकुलर फूड का क्या करना है, एसिमिलेट करना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, उन बॉडी सेल्स को जिसको क्या है उसकी ज़रूरत है। तो उसको क्या किया जाता है, जब बॉडी सेल्स जो है ऐसे जिसको क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसकी ज़रूरत है गाइस, उस फूड की ज़रूरत है। जब बॉडी सेल्स उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। एंड देन जो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके साथ साथ ही जो भी उनमें क्या होता है, कुछ उस फूड को यूटिलाइज करने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर बचता है, मतलब जो उनके काम का चीज़ नहीं है, फूड को उन्होंने यूटिलाइज कर लिया है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया है, जो उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए किसी काम का नहीं है, उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऐसे सारे सेल्स जब क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी से भी उस पर्टिकुलर अनडाइजेस्ट मैटर को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। सो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको पांचों स्टेप समझ में आ गई होगी, जो बेसिक स्टेप्स है किसकी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब आगे बात करते हैं गाइस, दैट इज आगे क्या है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय वेरियस हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, रेगुलेट, मतलब किस तरीके से उसका काम होना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, कब कौन से एंजाइम सिक्रीट होना चाहिए, कब कौन सा फूड मटेरियल है या फिर कब कौन सा बायोमोलिक्यूल, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनका डाइजेशन कहाँ होगा और किस पर्टिकुलर जगह पे होगा, ये सब किस तरीके से किया जाता है गाइस, ये सब किससे रेगुलेट होता है, कुछ हॉर्मोन्स के द्वारा। अब ये हॉर्मोन्स आते कहाँ से हैं, तो ये आते हैं आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जो दीज आर द ग्लैंड्स विच सिक्रीट दी हॉर्मोन्स, मतलब क्या करते हैं, कुछ आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन कुछ होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या करते हैं, सिर्फ हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो गाइस, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग को रेगुलेट करते रहते हैं। रेगुलेट मतलब कब कौन सी एक्टिविटी होना है, कब कौन सा जूस सिक्रेट होना है, मतलब चाहे बाइल जूस हो या फिर पैंक्रियाटिक जूस हो। तो इस तरीके से जो है इस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अब देखो गाइस, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, ठीक है, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारा अमीबा है वो क्या है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यूनिसेलुलर है, मतलब उसके अंदर एक ही सेल पाया जाता है। लेकिन व्हाट वी आर मेड अप ऑफ द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द सेल्स। किसके द्वारा बने हुए हम में मिलियंस और बिलियंस ऑफ द सेल्स है। इन सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे अंदर क्या है, हम ह्यूमंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। लाइक नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो इस तरीके के हमारे क्या है, अलग अलग सिस्टम से जो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। तो गाइस, यहाँ भी ऐसे ही है कि जो आपका क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से, पहला है एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल तक पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, सो एलिमेंट्री कैनाल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड इन दी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। मतलब किस में बना था गाइस, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला जो फाइलम होता है,
आपने देखा होगा चैप्टर 3 में क्लास 9th के, जहाँ पे हमने क्या किया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा है प्लेटीहेल्मिन्थस कौन सा होता है, थर्ड फाइलम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वहां पे उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस वाला फाइलम है आपका। इसमें क्या किया गया था गाइस, इसमें ही सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डेवलप हुई थी। मतलब इसमें अगर डेवलप हुई होगी तो वो कैसी होगी, काफ़ी सिंपल होगी। मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लेक्स होगा, सिंपलर होगा। और उसमें इतने सारे जो है ये ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, मेमल्स की बॉडी में देखने को मिलते हैं, उतने नहीं देखने को मिलते होंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में देखी गई थी, तो इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। समझ में आया गाइस आपको? चलो, और कोइल्ड एंड वेल डेवलप्ड, मतलब जो पूरे तरीके से वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जिसमें क्या हो, हर तरीके का फंक्शन हो सके, हर तरीके से क्या हो सके, वो वर्क कर सके, हर तरीके के उसमें ऑर्गन्स जो है क्या हो, फुल तरीके से डेवलप्ड हो। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल किस में डेवलप रहती है, तो इट इज इन दी फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा से स्टार्ट होती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, फ्रॉम दी फाइलम एनिलिडा टू दी फाइलम मैमल्स तक। कहाँ तक आती है, मैमल्स तक। तो आपको समझ में आया एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। सो एलिमेंट्री कैनाल को हम आगे और देखेंगे अभी जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था कि हमको क्या पढ़ना है, इन दी 1.2 वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स एज अमीबा। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने देखा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता था, 5 स्टेप्स होती थी आपकी, कौन कौन सी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड बताओ इजेशन। तो वही प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, अमीबा के ऊपर होगी। अब अमीबा बेसिकली है क्या, तो अमीबा क्या है गाइस, इट इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। मतलब ये ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। मतलब इसकी जो बॉडी है वो क्या है, वो पूरा जो एक सिंगल सेल की बॉडी बनी हुई है इसकी पूरी। तो उस पर्टिकुलर सिंगल सेल में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे हमको इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, तो पढ़ना इसलिए जरूरी है गाइस कि हम तो ह्यूमंस हैं, और हमारे आसपास के अदर एनिमल्स, चाहे वो काऊ हो गई या फिर जो भी छोटे छोटे इस हमसे थोड़े कम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे कि क्या हो गए, एनिलिडास हो गए, और क्या हो गए, आर्थ्रोपोडा वाले हो गए। तो ऐसे सारे एनिमल्स में क्या होता है ना गाइस, कि उनके अंदर तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से वहाँ क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन की जो प्रोसेस वो अच्छे से हो जाती है। न्यूट्रिशन उनके लिए क्या है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी पूरी बॉडी में अमीबा के अंदर सेल ही सिर्फ एक है। मतलब क्या है, अमीबा इज सिंगल सेल और यूनिसेलुलर। तो इसकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, उस चीज को समझने के लिए हमको यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है, दैट इज न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एज अमीबा। तो गाइस इसको देखते हैं। तो गाइस अमीबा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दैट अमीबा इज व्हाट, इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर। कहाँ पे रहता है ये, वाटर के अंदर। इसका हैबिटेट क्या है, वाटर है। हैबिटेट मतलब रहने की जगह, ठीक है। सो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अब हमको ये तो पता ही कि एनिमल्स में क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। लेकिन साथ ही साथ हेटरोट्रॉफिक के भी 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज पैरासाइटिक, और कौन सा होता है, बताओ गाइस, सेप्रोट्रोफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। 3 तरीके के क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, किसमें, एनिमल्स में। लेकिन अमीबा में जो पर्टिकुलरली पाया जाता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या करेगा ये, अमीबा के अंदर ये किसके अंदर कौन सा फूड पार्टिकल चाहिए होता है, सॉलिड फूड के ऊपर फीड करता है। किसके ऊपर फूड फीड करता है गाइस, सॉलिड फूड के ऊपर। उस सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर क्या लेता है, इनटेक कर लेता है, मतलब उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। और उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, अलग अलग प्रोसेसेस होगी और उस फूड को यूटिलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज बाय द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब पूरा जो सेल है वो क्या करेगा, सेल ईटिंग के द्वारा क्या होती है यहाँ पे प्रोसेस को, मतलब फूड को ऑब्टेन किया जाता है। आगे हम देखेंगे गाइस किस तरीके से होगा। तो देखिए आप, देखिए गाइस, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखिए गाइस यहाँ पे भी वही सारी को क्या होगी,
प्रोसेसेस होगी। पहली प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, इंजेशन। इंजेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या किया जाता है, फूड का इंटेक किया जाता है, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो आप देखिए डायग्राम 1 में, जो जहाँ पे 1 मार्क है वहाँ पे देखिए अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, वो सबसे पहले उसको पता चल रहा है कि हाँ मेरे आसपास क्या है, फूड है। अमीबा सेंसेस द फूड, मतलब जब क्या होता है, अमीबा को इस चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ वी हैव द फूड अराउंड अस, मतलब उसके आसपास क्या है, फूड है। तो वो क्या करता है, तो देखो इंजेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, सिंस इट इज अ यूनिसेलुलर सो अ सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दी वाइटल एक्टिविटीज। मतलब देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है, उसको क्या करना है, इंजेक्शन भी उसको ही करना है, डाइजेशन भी उसको ही करना है, एब्जॉर्प्शन भी उसको ही करना है, साथ ही साथ उसको क्या करना है, एसिमिलेशन भी करना है और इजेशन भी करना है। तो इस छोटे से बच्चे को क्या दे दिया है, छोटे से बच्चे मतलब अगर हम कंपेयर करें उसको, हम पर्टिकुलर एडल्ट के हिसाब से या फिर हमारे जो जाइंट्स हैं, हम इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उसके कंपेयर में अगर देखें हम इस छोटे से ऑर्गेनिज्म को, छोटे से एनिमल को क्या दे दिया है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, उसको इतना सारा काम दे दिया है कि भाई खाना भी तू ही बनाएगा और खाएगा भी तू ही, बर्तन भी तू ही साफ करेगा और झाड़ू पोछा भी तू ही लगाएगा। तो मतलब उसको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो उसकी बॉडी के लिए क्या है, उसकी लाइफ के लिए उसकी न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए क्या है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर फंक्शंस को, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे सारे फंक्शंस को अकेले ही उस पर्टिकुलर सेल को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ही सेल क्या कर रहा है, बहुत सारी क्या कर रहा है, एक्टिविटीज करता है, तो वो अलग अलग टाइम पे की जाती है। देखो अब क्या होगा, इंजेक्शन की प्रोसेस में हमको क्या करना है, फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब गाइस आप देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर, देखिए अमीबा ने क्या किया था, फूड को सेंस किया, ये देखिए फूड आया इसके पास, ये क्या कर लेगा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेगा उस फूड के आसपास, मतलब फूड के अराउंड अपनी बॉडी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, अपनी बॉडी से उस फूड को क्या कर लेगा, पूरा सराउंड कर लेगा। तो ये चेंज इन शेप जो दिख रहा है आपको, मतलब जो ये शेप चेंज हो रहा है अमीबा का, किसका हो रहा है, अमीबा का जो ये शेप चेंज हो रहा है, किसको देख के, जब उसने फूड को सेंस किया और उसने किसका फॉर्मेशन किया गाइस, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया ने क्या किया, फूड को सराउंड कर लिया। अब क्या करता है, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन होने के बाद क्या करेगा, अमीबा इनगल्फ कर लेता है किसको, फूड पार्टिकल को, मतलब जो जिसको क्या कर रखा है, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन होने के बाद जो फूड क्या हो गया है, सराउंड हो गया है चारों तरफ से सूडोपोडिया के होने से, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर चले जाएगा, किसकी, अमीबा की। अमीबा ने कैसे किया, उसको कैसे ऑब्टेन किया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग और इंजेक्शन बाय दी सूडोपोडिया। उसने सूडोपोडिया को फॉर्म किया, उससे फूड को क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, मतलब उसका क्या कर लिया गाइस, इनटेक कर लिया। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो गई इंजेक्शन की, कि इंजेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था, क्या करते थे हम, कि हम करते थे इनटेक ऑफ फूड, मतलब हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, अमीबा ने सूडोपोडिया के हेल्प से फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। अब देखो गाइस, अब अमीबा के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक थर्ड इमेज में आपको दिख रहा है, एक वैक्यूल व्हाइट व्हाइट कलर का यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल को हम कंपेयर कर सकते हैं किस चीज से गाइस, इसको टेम्पररी स्टोमक से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो स्टमक है, उस स्टमक से हम कंपेयर कर सकते हैं इस फूड वैक्यूल को। अब ये फूड वैक्यूल बेसिकली है क्या, तो ये फूड वैक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, किसका, जो फूड मटेरियल को अमीबा ने क्या किया है, इनगल्फ किया है, या फिर जिस फूड मटेरियल का अमीबा ने इंटेक किया है, उस फूड के डाइजेशन में कौन हेल्प करने वाला है गाइस, तो ये जो फूड वैक्यूल जो है वो यहाँ पे वर्क करेगा एज ए टेम्पररी स्टोमक। तो गाइस पहली प्रोसेस हो गई अमीबा के अंदर, कि उसने क्या किया, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, फूड को सेंस किया, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, फूड को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, मतलब उसको इनगल्फ कर लिया। अब इनगल्फ करने के लिए के बाद वो फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएगा। फूड वैक्यूल क्या है, एक टेम्पररी स्टोमक की तरह काम करेगा उस पर्टिकुलर अमीबा के अंदर। अब गाइस सेकेंड प्रोसेस आती है डाइजेशन की।
तो डाइजेशन बेसिकली है क्या? तो डाइजेशन जो है, द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर एंड सोल्यूबल फॉर्म्स। मतलब क्या किया, देखो गाइस ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फूड वैक्यूल है, इन द इमेज नंबर 4 यू विल बी एबल टू सी दैट जो फूड वैक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, ये न्यूक्लियस हो गया ब्लैक ब्लैक, जो आपको डार्क ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। और उसको जो आसपास जो आपकी बॉडी में जो क्या दिख रहा है आपको, लिक्विड जैसा एक दिख रहा है, उस मैटर को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या होगा, कुछ ऐसे एंजाइम्स जो होंगे वो क्या होंगे, उस फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे। फूड वैक्यूल के अंदर आने के बाद वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड के ऊपर अपनी एक्शन करेंगे, मतलब अपनी एक्शन से क्या करेंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, उस फूड मटेरियल के ऊपर अपनी एक्शन से उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म्स में। तो वो किसकी मदद से होगा, एंजाइम्स की मदद से। और किसके अंदर होगा गाइस, तो फूड वैक्यूल के अंदर होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया आपका। फूड डाइजेस्ट होने के बाद देखिए गाइस, जो अगली प्रोसेस आएगी वो आएगी एब्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन किस तरीके से किया जाएगा इस फूड का, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि अमीबा क्या है गाइस, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा, तो फूड का डाइजेशन होने के बाद जो सेल है अमीबा का, जो क्या है अकेला सेल है, वो क्या करेगा, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है, मतलब जो डाइजेशन होने के बाद जो भी ऐसा क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, और फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी सोल्यूबल मटेरियल बना है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूज़ कर लिया जाएगा उस सेल के द्वारा। और उसके बाद प्रोसेस होगी इजेशन की। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ दिस सेल। सो यू विल बी एबल टू सी इन द इमेज नंबर 6 इन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या किया जा रहा है, बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से गाइस आपको समझ में आया आपको अभी यहाँ पे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। अमीबा में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, अमीबा क्या करता है गाइस, फूड को सेंस करता है। फूड को सेंस करते ही वो क्या करेगा, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। उस सूडोपोडिया की हेल्प की मदद से उसको क्या कर लेगा, फूड को सराउंड कर लेगा और फूड को बॉडी के अंदर क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, या बॉडी के अंदर उसका इंटेक कर लेगा। इंटेक करने के बाद फूड कहाँ जाता है, फूड गोज इनटू द फूड वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल एक्ट्स एज द टेम्पररी स्टोमक। तो ये टेम्पररी स्टोमक के थ्रू क्या करता है, वर्क करता है, जिसमें क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स की जो जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएंगे गाइस, so they will come from the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ रहेगा, उस फूड वैक्यूल के आसपास जो है साइटोप्लाज्म है, उसमें से क्या होंगे, एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम्स आने के बाद क्या करेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसके ऊपर अपनी एक्शन करेंगे, मतलब अपना काम करेंगे। अपना काम करने से क्या होगा, जो फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में। मतलब जो फूड क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स था, वो किसकी मदद से कन्वर्ट हो गया सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म्स में, तो किसकी मदद से हुआ, एंजाइम्स की। और ये एंजाइम्स आए कहाँ से, ये आए आपके साइटोप्लाज्म से। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, सोल्यूबल फॉर्म में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन होगा। मतलब जो फूड क्या हो गया है, डाइजेशन होने के बाद जो फूड मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आपके सोल्यूबल और स्मॉलर फॉर्म में। अब उसको यूटिलाइज करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी और उसके बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस हो जाएगी उसी सेल के अंदर। सेल क्या करेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस फूड को यूज कर लेगा या फिर स्टोर करके रख लेगा। और साथ ही साथ जब क्या होगा, जब इजेशन की प्रोसेस होगी, मतलब इजेशन की प्रोसेस क्या होगी कि जो भी फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। सो गाइस इन दिस वे वी कैन सी और अंडरस्टैंड द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन दी अमीबा। मतलब अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब गाइस अगला जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स एज ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस जो है, अभी हमने किस में देखा था, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। अब हमको क्या देखना है गाइस, नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ इन द हायर एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन गेट्स परफॉर्म। मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस हायर एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, उसमें किस तरीके से होती है और किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। सो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस किस का बना होता है, दो चीज़ों का बना होता है। पहला जो पार्ट होता है उसका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। सो यू विल बी एबल टू सी हियर दैट जो ये एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से आ रही है, माउथ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एनस तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है गाइस, एनस तक जा रही है। इसके बीच में इसको आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बड़ी होगी, छोटी होगी, छोटी होने के बाद कभी बहुत ज़्यादा घुमाव होंगे इसमें, कभी ज़्यादा हाईली कोइल्ड रहेगी, कभी कम कोइल हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये माउथ से स्टार्ट होते होते ओरल कैविटी में जाएगी, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, देन द व्हाट, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। तो इस तरीके से क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। मतलब ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से अलग अलग तरह के जो किसमें होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, उसको हमको पढ़ना है। तो इन द पार्ट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी सिक्रीशन क्या होती है और कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस या फिर उनकी सिक्रीशन क्या होती है, उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन दी एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस देखिए, ह्यूमंस हैव हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब देखो, हमने अभी देखा कि अमीबा के अंदर क्या था, काफी सिंपल प्रोसेस था, किसका, डाइजेशन का या फिर न्यूट्रिशन का। लेकिन हम एनिमल्स जो है, हमारे अंदर क्या है, काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, किसका, डाइजेशन का। मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारे अंदर कैसे होती है, काफी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसका किसका बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया गाइस कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का, वो किसका बना हुआ होता है, एक तरफ होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी तरफ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो दिस बोथ फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस किसका बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो आज हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, सो गाइस ये क्या होती है, इट इज ए लॉन्ग मतलब काफी ज्यादा लंबी, होलो मतलब खोखली, मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ नहीं हो, ठीक है। कैसा है, लंबा और खाली, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। तो आपने एक पाइप देखा है गाइस, पाइप देखा होगा आप सबने घर में लोहे का। कैसा होता है वो, लंबा होता है, अंदर से होलो होता है, मतलब अंदर से भरा हुआ नहीं होता है, और साथ ही कैसा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेम ऐसी होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है, इट इज द सेम, दैट इज लॉन्ग, होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या होता है, लॉन्ग है, होलो है, मतलब लंबा है, खोखला है, और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। मतलब किसके लिए, किस किस का कंसिस्टिंग होता है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली व्हाट, इट इज ए लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑर्गन्स है ऐसे जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। तो गाइस पहले एलिमेंट्री कैनाल को देख लीजिए। ये देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा माउथ है, माउथ से ही हमारी स्टार्ट हो रही है एलिमेंट्री कैनाल, देन ये ऊपर जाएगी, ओरल कैविटी बनी हमारी, ओरल कैविटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देन ये यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये क्या हो गया, ईसोफेगस आपको देखने को मिलेगा। ईसोफेगस देखने को बाद आपको क्या मिलेगा, स्टमक देखने को मिलेगा। स्टमक के बाद आपको क्या मिल रहा है गाइस, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्या मिलने का, इस लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी। सो ये क्या है, ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जो किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो अब हमको क्या करना है,
इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस किससे? माउथ से। कि माउथ बेसिकली है क्या? सो माउथ इट इज अ स्मॉलर स्लिट ओपनिंग, मतलब स्लिट मतलब होता है ओपनिंग या पोर। मतलब क्या होता है? स्लिट मतलब होता है ओपनिंग या पोर। सो इट इज अ स्मॉलर स्लिट थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। मतलब क्या है? ये मेरा जो माउथ है, आप देख रहे हो ना गाइस, आप सबको पता होगा, फेमिलियर हो माउथ से, तो दिन भर ही तो खाना खाते रहते हो आप लोग, आपको पता ही होगा कि माउथ क्या होता है। या फिर जो खाना नहीं खाते जिनकी क्या होता है? मुंह ज्यादा चलता है। मुंह मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर बातें करते रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि माउथ क्या है। वो बहुत अच्छे तरीके से क्या होंगे? फेमिलियर होंगे यहाँ पे आप कि माउथ क्या है। सो माउथ इज बेसिकली व्हाट? इट इज ए स्मॉलर स्लिट। स्लिट मतलब स्मॉलर ओपनिंग थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। मतलब हमारी सराउंडिंग से हम फूड जो है उसको अपनी बॉडी को किस के अंदर किस तरीके से लेंगे? थ्रू दी माउथ। माउथ से क्या करेंगे? हम उस फूड को इंटेक करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। सपोज मैंने खाना खाया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेट का ढक्कन खोला यहीं पर और सीधा खाना डाल दिया कि हाँ यहाँ डाइजेशन होता है तो इसको सीधे यहीं डाल देता हूँ। सो नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। हम जो है फूड को किस तरीके से इंजेस्ट करते हैं? थ्रू दी माउथ। माउथ हमारा क्या है? ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ? खाना खाता हूँ। खाना को क्या करता हूँ? माउथ को ओपन करता हूँ। ये ओपन होने के बाद मैंने क्या किया? खाने को अपने हाथ से या जो भी उससे अंदर ले लिया। अंदर ले लिया तो ये क्या हो गया? फूड इंजेस्ट हो गया, है ना। एनिमल्स में भी क्या होता है, सॉरी ह्यूमंस में भी क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ भी वही सारी प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या हुआ? फूड जो है इंजेस्ट हो गया। इंजेस्ट मतलब कि बॉडी के अंदर चले गया, उसका हमने क्या कर लिया? इनटेक कर लिया। तो किसके द्वारा कर रहे हैं हम? माउथ के द्वारा। और माउथ से क्या करते हैं हम? जो भी सराउंडिंग में हमारा फूड होता है उसको क्या करते हैं? इनटेक कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? माउथ। तो माउथ इज ए स्मॉलर स्लिट थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। मतलब बॉडी के अंदर फूड किससे लिया जाता है? माउथ से। दूसरा होता है गाइस बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी देखिए, ये जो हमारा माउथ है, ठीक है, ये जो मेरा माउथ है, ये मेरा मुंह है, ये जिस जिसके अंदर जाके, जिस चेम्बर के अंदर जाके क्या है? खुलता है, उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। देखिए आप मुंह खोल के देखिए अपना सब इस तरीके से। तो मैं आपको इशारे से बता देता हूँ क्या होता है। तो बक्कल कैविटी क्या होती है गाइस? यू विल बी एबल टू सी हियर दैट ये मेरा माउथ है, मैंने इसको क्या किया? खोला। सो दिस विल बी व्हाट? दिस इज दी अवर ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी को कभी कभी क्या कहा जाता है? ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ जो है अलग अलग चीजें पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है उसको कह देता हूं मैं आपको। तो पहला होता है पैलेट। पैलेट मतलब रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। तो इस डायग्राम में देखिए गाइस आप कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैलेट। पैलेट दो तरह का होता है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। तो आप देखिए ना गाइस, अपने घर पे जाना, अच्छे से अपने हैंड वॉश करना, ठीक है। हैंड वॉश करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद क्या करना? आप चेक कर सकते हो कि हार्ड पैलेट कहाँ पे है, सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है, और ये रूफ कहाँ पे होती है हमारी बक्कल कैविटी की। तो देखिए गाइस, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पे होती है। ये जो मैंने जहाँ पे टच किया है ना अभी, ये होता है हमारा क्या? पैलेट होता है। पैलेट मतलब ये क्या है? रूफ है। ये हमारी क्या हो गई? आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी क्या हो गई? बक्कल कैविटी हो गई या फिर ओरल कैविटी हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसका जो अपर पार्ट मतलब जितना ये खुल सकती है, जिसके ऊपर क्या है, ये जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरी क्या है? रूफ है, इसको कहा जाता है पैलेट। मतलब जहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा माउथ जिससे ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता। या फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो हम हाथ लगाते हैं अगर उंगली से, तो जो कवरिंग होती है ऊपर की साइड से, उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। दूसरा होता है टंग। अब टंग क्या होती है गाइस? तो टंग तो आप सबको पता ही है, सबकी चलती ही है दिन भर, ठीक है, चाहे वो खाने में हो या बातें करने में हो, टंग इज कंटिन्यूअसली यूज्ड, ठीक है। तो टंग क्या होती है? तो देखो, अब ये रूफ की तो हमने बात कर ली कि रूफ को क्या कहा जाता है? पैलेट कहा जाता है। लेकिन गाइस क्या होता है? जो फ्लोर पे जो होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको टंग कहा जाता है। सो बेसिकली
टंग हमारा क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये कहाँ पे है, फ्लोर पे है, क्योंकि हमारी जो ऊपर तो क्या है, ये पैलेट है, और नीचे की साइड क्या है, ये क्या है, टंग है। सो ये किस में मदद करती है हमको, इट हेल्प्स इन स्वीविंग, स्वेलोइंग, टेस्टिंग एंड स्पीकिंग। किस किस में मदद करती है, कौन कौन से चीज़ों में हमको मदद करती है। तो पहला अगर हमको खाना चबाना है तो हम क्या करते हैं, चबाते तो दांतों से हैं, लेकिन उसको किस साइड, इधर से उधर लेके जाने में हमको टंग क्या करती है, मस्कुलर मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से चबा सकते हैं। दूसरा, हमको अगर स्वेलो करना है कोई चीज़ को, डायरेक्ट हमको क्या, हमने कुछ खाया और उसको चबाने के बाद हमको क्या करना है, बॉडी के अंदर लेके जाना है, तो उसको स्वेलो करने में टंग मदद करती है। टेस्ट बर्ड्स होते हैं किसके ऊपर, टंग के ऊपर, ठीक है। क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, आपको जो अलग अलग टेस्ट आता है ना, जैसे आपने मीठा खाया, आपने क्या खाया, तीखा खाया, आपने नमकीन खाया, आपने खट्टा खाया, तो इस तरीके का आपको टेस्ट बर्ड, ये जो टेस्ट है वो किस तरीके से आता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट बर्ड इन योर टंग। आपकी टंग में क्या होती है, कुछ ऐसी टेस्ट बर्ड्स होती है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करती है। जब आप अलग अलग टाइप ऑफ फूड खाते हो तो उस टेस्ट को सेंस कौन करता है, या वो करता है आपकी टेस्ट बर्ड्स। अब देखिए गाइस, अब देखिए, थर्ड जो है आपकी क्या है, टीथ। तीसरे होते हैं आपके इस बक्कल केविटी में एक और चीज पाई जाती है जो होते हैं टीथ। अब देखो, पैलेट पाया, फ्लोर पे क्या आ गया, टंग आ गई। अब सामने की तरफ होते हैं टीथ। अब ये टीथ जो होते हैं इनका क्या काम होता है, टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट, सो द टीथ हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन। मतलब जो फूड का जो फिजिकल डाइजेशन, मतलब जैसे हमने क्या किया, रोटी का बड़ा सा बाइट लिया, एक बाइट को हमने क्या कर लिया, अपने मुंह के अंदर रख लिया, ठीक है। या फिर आपने जो भी चीज़ खाया, आपने समोसा खाया, समोसा का एक बाइट लिया, लेकिन वो इतना बड़ा है कि क्या वो ब्लड में क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है डायरेक्टली बिना डाइजेशन के, नहीं हो सकता। तो डाइजेशन की प्रोसेस की हमको ज़रूरत है। अब डाइजेशन की प्रोसेस को हमको ज़रूरत है तो दो तरीके से होता है डाइजेशन, कि एक तो हम क्या करें, उसको यूज़ कर करके या फिर उसको ची कर करके क्या कर ले बिल्कुल, तो उससे भी क्या होगा कि वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, उसका फिजिकल डाइजेशन तो हो जाएगा। फिजिकल डाइजेशन मतलब जैसा उसका शेप है, सपोज आपने इतना बड़ा लिया था तो वो बिल्कुल टूट टूट के बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा या फिर उसको चेंज हो जाएगा। लेकिन उसका यहाँ पे केमिकली डाइजेशन नहीं हो पाता है। केमिकली डाइजेशन मतलब यहाँ पे उसको ऐसे एंजाइम्स नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से उसका क्या हो सके, फर्दर और डाइजेशन हो सके, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए गाइस, या फिर सोल्यूबल या सिंपल फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिकल डाइजेशन की। अब देखिए गाइस, तो टीथ क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में तो हेल्प कर देते हैं किसकी, फूड की। किस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, टीथ को यूज़ करते हैं ताकि हम फूड को क्या कर सके, कट कर सके, किसमें, छोटे छोटे पीसेस में, उसको च्यू करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। तो इन इन सारी प्रोसेस से क्या होता है, टीथ हमको हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में। अब देखो, हमारे जो जॉस है, जॉस मतलब आपके मसोड़े, मसोड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये ये क्या होते हैं गाइस, इनको मसोड़े कहा जाता है, फिर इंग्लिश में कहें तो हम जॉस कहा जाता है। सो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, बक्कल केविटी में। इसमें क्या होता है, चार तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा गाइस, ये बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको, कि टीथ कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। चार तरह के कौन कौन से होते हैं, तो इंसाइसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलार्स। कौन कौन से होते हैं, इंसाइसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ये चार तरह के टीथ जो है बेसिकली पाए जाते हैं किसमें, आपकी बक्कल केविटी के जॉ के अंदर। अब इनका क्या होता है, अलग अलग क्यों है चारों, तो चारों इसलिए अलग अलग है कि चारों के क्या है, अलग अलग फंक्शन है। इंसाइसर्स मतलब ये आपको जो फर्स्ट डायग्राम में देख, जो डायग्राम में आपको फर्स्ट दिख रहा है, इसका काम क्या होता है गाइस, तो इसका काम ये होता है, अब मैं कैसे बताऊं, मैं दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है गाइस, कि इसका काम होता है कटिंग के लिए, मतलब आपको कोई किसी चीज़ को काटना है, जैसे आपने एक पेपर लिया, उसको आपको फाड़ना है। कभी कभी करते हैं ना, हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं और उसको हमको फाड़ना है, तो फाड़ने में आपके कौन से दांत यूज आते हैं, तो उनको कहा जाता है इंसाइसर्स, है ना। ठीक है गाइस, फॉर कटिंग, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, माय बैड।
सो इंसाइसेस आर यूज फॉर दी कटिंग, मतलब आपको किसी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में कट डाउन करना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कौन से काम में आते हैं? इंसाइसर्स। ये आगे के आपको दांत दिख रहे हैं, ये जो दो दो दांत, ठीक है, ये क्या होता है? इंसाइसर्स होते हैं। यू विल बी एबल टू सी, ये जो दांत होते हैं इनको इंसाइसर्स कहा जाता है। गाइस प्लीज़ हंसिएगा मत, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके, आपको सीधे ही देखने को मिल जाए, इसलिए मैं अपने ही फेस के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। अपने फेस के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माउथ क्या होता है, बक्कल कैविटी क्या होता है, और दांत कौन कौन से अलग अलग तरह के होते हैं। तो गाइस देखिए आप कि आगे के जो आपके जो दिख रहे हैं ना आपको, एक 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 ये दांत क्या होते हैं? इंसाइसर्स होते हैं। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को कट करना। मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ नट्स खाए, अब नट्स आप क्या करते हो, कभी कभी यहीं से काट देते हो, यहीं से काट देते हो, या फिर कभी कभी क्या आपने बचपन में देखा होगा कि आपके पास एक ही टॉफ़ी रहती थी और आपको क्या करना होता था, उसको कट करना होता था, तो आप क्या करते थे, करके आधे अपने दोस्त को दे देते थे, अपने सिबलिंग को दे देते थे। होता है गाइस, होता है ना, करते हैं हम, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इंसाइसर्स की जरूरत क्यों होती है हमको? फॉर दी कटिंग, मतलब कट डाउन करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो वो कौन से दांत होते हैं? दीज आर दी इंसाइसर्स। देन कैनाइन्स आर यूज फॉर दी टीयरिंग। टीयरिंग मतलब किसी चीज़ को आपको फाड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ होगी यूज? कैनाइंस। हम चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पैकेट को जब हमसे हाथ से नहीं फटता है, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको क्या होता है, उस पैकेट को फाड़ना होता है, तो क्या करते हैं, कौन से टीथ्स को यूज करते हैं? कैनाइंस का। तो कैनाइंस कौन से टीथ्स होते हैं? गाइस यू विल बी एबल टू सी हियर दैट दीज आर द कैनाइंस। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? टीयरिंग में यूज करते हैं। किसको किसको यूज करते हैं गाइस, बताओ मुझे। कैनाइंस को यूज किया जाता है फॉर दी टीयरिंग। प्री मोलार्स एंड मोलार्स आर यूज फॉर दी ग्राइंडिंग, मतलब जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको चबाने के लिए, चबाने के लिए किसको यूज किया जाता है? इन दोनों दांतों का यूज किया जाता है, दैट इज प्री मोलार्स एंड दी मोलार्स। आया गाइस समझ में? अब देखो गाइस क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि इंसान के जीवन काल में, मतलब इन द लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द ह्यूमंस, कितने, दो तरह के क्या होते हैं? टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो दूध के दांत जिसको कहा जाता है क्या? मिल्क टीथ, मतलब फर्स्ट वन इज दी मिल्क टीथ। अब ये क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं, मतलब ये आते तो हैं लेकिन चले भी जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। मतलब ये आते हैं आपकी जब कब आप बहुत छोटे होते हो, जब आप बहुत छोटू से होते हो, तब आपको कौन से दांत आते हैं? मिल्क टीथ आते हैं। मतलब 6 से 11 महीने की एज जब होती है आपकी, तब ये टीथ आते हैं, और आते आते आपके 8-10 साल की एज में क्या हो जाते हैं? काफ़ी पूरे चले जाते हैं। तो इन टीथ को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है। लेकिन एक और तरह के टीथ होते हैं जिनको कहा जाता है परमानेंट टीथ, मतलब वो एक बार आते हैं तो फिर कभी नहीं जाते। जाते हैं बहुत सारे लोगों के जो टॉफ़ीज़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं या चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं, तो उन लोगों के दांत में क्या हो जाता है? कीड़ा हो जाता है या दांत सड़ जाता है, तो उनके दांत चले जाते हैं फिर। लेकिन इन जनरल हम क्या कहते हैं? वो परमानेंट होते हैं। कौन से? परमानेंट सेट ऑफ टीथ आर दी परमानेंट, ठीक है। तो मिल्क टीथ क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। कब आते हैं? जब आप 6 से 1 साल की एज के बीच में रहते हो, उसके बीच में क्या होते हैं? ये सारे टीथ आते हैं। और कितने होते हैं ये? 20 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं गाइस? 20 होते हैं। तो आप अगर अगर अगली बार क्या हो, कोई बच्चा आपको परेशान करे और आप जब उससे बोले कि तेरे 32 ही दांत तोड़ दूंगा, ठीक है, कभी कभी जनरली बोल देते हैं, वी डोंट मीन इट, तो आप अगली बार से 32 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें कितने होते हैं गाइस? सिर्फ 20 होते हैं। सो गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो कितने होते हैं? मिल्क टीथ आर ओनली 20 इन नंबर गाइस। बस जस्ट इट वाज जस्ट ए जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, सो नेक्स्ट, अब देखो ये हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है? अपर जो होता है। ये क्या होता है? अपर जो होता है। और ये वाला क्या होता है? लोअर जो होता है। ये क्या होता है? लोअर जो। ये हो गया अपर जो। तो अपर जो में कितने टीथ होंगे और लोअर जो में कितने टीथ होंगे? इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है। इससे क्या पता लगता है हमको कि हमारे जो अपर जो है और लोअर जो है उसमें कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं, उनका नंबर कितना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2102 एंड 2102, दो यहाँ पे लिखा है हाफ अपर जो एंड हाफ लोअर जो, जिसमें क्या होता है? सेम नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से सेम है। तो अपर जो में भी और लोअर जो में भी कौन से? आई मतलब इंसाइसर्स। आई स्टैंड्स फॉर दी इंसाइसर्स, मतलब कितने कितने? दो दो
क्या पाए जाते हैं, इंसाइसर्स पाए जाते हैं। किसमें, बोलो गाइस, किसमें, हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो में। किसमें, हाफ अपर जो और लोअर जो। हाफ मतलब ये इससे इतना इतना वाला पार्ट, कितना, इतना इतना, और इतना अलग हाफ होगा। सेम नीचे की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से इतना इतना हाफ अलग होगा और इतना इतना हाफ अलग होगा। तो ऐसे हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो में कितने होते हैं, दो इंसाइसर्स पाए जाते हैं, एक केनाइंस पाया जाता है और दो मोलार्स पाए जाते हैं। प्री मोलार जो होते हैं वो बच्चों में नहीं आते हैं, या फिर मिल्क टीथ में जो होते हैं मोलार्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम निकालेगा इस तो क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने टीथ्स हो रहे हैं, इंसाइसर्स कितने हैं, दोनों जगह दो दो है तो चार हो गए। केनाइंस कितने हैं, एक एक है तो चार और दो छः हो गए। और मोलार्स कितने हैं, दो दो हैं तो टोटल चार, तो छः और चार 10 हो गए। तो कितने हो गए आपके पास टोटल टीथ, डेंटल फॉर्मूला कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो के लिए। ये जो इतना इतना वाला पार्ट है मेरा, इसमें कितने दांत आए मेरे, अगर मैं मिल्क टीथ का अगर डेंटल फॉर्मूला चेक करना चाहूँ तो कितने हुए, 10। जब मैं छोटा सा रहूंगा, जब मेरे क्या रहेंगे, मिल्क टीथ रहेंगे, तो ये कितने होंगे, 10 होंगे एक साइड में। लेकिन अगर एक साइड की ओर मैं बात करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। क्यों किया, क्योंकि ये 10 जो है सिर्फ एक का है, हमको एक 10 और ऐड करना है, मतलब आधा वाला पार्ट जिसमें हमारे क्या है, बाकी के दांत और प्रेजेंट है, बाकी के टीथ और प्रेजेंट है, उसको हमको भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन दिट वे विल बी एबल टू सी हियर दैट हमको कितने मिल्क टीथ जो है आपके, उसमें कितने होते हैं गाइस, तो 8 जो होते हैं आपके इंसाइसर्स होते हैं, और 4 आपके केनाइंस होते हैं, और 8 मोलार्स होते हैं। प्री मोलार्स आर एब्सेंट इन दी सेट ऑफ मिल्क टीथ्स। सो गाइस इस तरीके से 20 वाला जो नंबर है आपका, कि जो 20 टीथ्स होते हैं, किस कौन से, मिल्क टीथ्स कितने होते हैं नंबर में, 20 होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, दैट 8 आर द इंसाइसर्स और 4 आर द कैनाइंस एंड 8 आर अगेंस्ट द मोलार्स। ये हमने किसकी बात करी, पूरे जॉ की, मतलब पूरी बक्कल कैविटी में हमारे जितने भी टीथ है वो कितने होंगे, 20 होंगे। किसमें, मिल्क टीथ के सेट में। अब बात करते हैं गाइस परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ क्या होता है, सो परमानेंट टीथ किस में पाए जाते हैं, एडल्ट्स में पाए जाते हैं। और कितने होते हैं ये, 32 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं गाइस, 32 होते हैं। अब हमने देख ही लिया चारों टाइप्स, तो कौन कौन से होते हैं, इंसाइसर्स, केनाइंस, मोलार्स एंड प्री मोलार्स। ये चारों क्या होते हैं, दे आर दी टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म और इन ह्यूमंस। ठीक है। अब देखिए गाइस, वो मिल्क टीथ थे, मतलब वो आके चले गए हैं। उसके बाद क्या हो गया, नए टीथ आए आपको, जिनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ जो होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला हमको यहाँ पे देखना है। तो सेम वापस वही कंसेप्ट लगाना है आपको, कि आपको हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो के काउंट करना है। दैट इज हमको इतने इतने पार्ट का, ये सपोज हमारा पूरा माउथ है, तो मैं नाक की सीध से क्या कर रहा हूँ, इतर वाला पार्ट जो क्या हो गया मेरा, इसमें हाफ अपर जो भी आ गया और हाफ लोअर जो भी आ गया। तो इसके हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला चेक कर लेंगे। तो इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें देखिए गाइस, 2 जो है वो क्या है, इंसाइसर से, 1 जो क्या है, कैनाइन से, 2 क्या है, प्री मोलार्स एंड 3 आर दी मोलार्स। मतलब जो प्री मोलार्स किस में एब्सेंट थे, मिल्क टीथ में जो प्री मोलार्स एब्सेंट थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, परमानेंट टीथ में वो प्री मोलार्स भी हमको देखने को मिलेंगे। अब प्री मोलार्स कब आते हैं, तो आपने घर में सुना होगा सब लोगों ने ये कहावत कि अक्कल दाढ़ आ गई। अक्कल दाढ़ मतलब कि लोगों में एक पर्टिकुलर एज के बाद, मेच्योरिटी के बाद क्या होते हैं, ये प्री मोलार्स बनते हैं या फिर आते हैं। उस चीज़ को कहा जाता है प्री मोलार्स। दीज आर यूज फॉर दी ग्राइंडिंग। तो इनको कभी कभी गाँव में या फिर हमारी पुरानी भाषा में क्या कहा जाता है, कि आप अक्कल दाढ़ क्यों कहा जाती है, ऐसे नहीं कि इस दाढ़ में अक्ल होती है। देखो गाइस, ये उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आती है जब एक इंसान जो होता है, एक जो क्या होता है ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन जो होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें समझ आ जाती है। उस चीज़ के लिए कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में दांत आए, तो इसीलिए उसको कहने लग गए कि अक्कल दाढ़ आ गई। ठीक है। और वाइस टीथ इनको कहा जाता है।
सो पीएम मतलब प्रीमोलार्स भी हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, परमानेंट टीथ्स में। अब देखिए गाइस, दो हमको अपर जो में देखने को मिल रहे हैं, दो लोअर जो में देखने को मिल रहे हैं। कौन, इंसाइजर्स। एक एक हमको कैनाइंस कहाँ देखने को मिल रहा है, अपर जो और लोअर जो में। साथ ही साथ हमको दो दो प्रीमोलर्स दिख रहे हैं, अपर जो और लोअर जो में। और उसके साथ साथ ही हमको तीन तीन क्या मिल रहे हैं, मोलार्स मिल रहे हैं, दैट इज। तो इस तरीके से अगर हम अपर जो की बात करें, हाफ अपर जो की, तो यहाँ पे 8 हो रहा है, और हाफ लोअर जो की बात करें तो 6 हाफ 8 हो रहा है। तो 8 और 8 मिलके कितने हो गए, एक कितने, हाफ जो में अगर हम हमारी बात करें तो हाफ जो में हमारे कितने हो गए, 16 टीथ्स हो गए। लेकिन ये सिर्फ इतने पार्ट में हुए या फिर इतने पार्ट में हुए, एक हाफ में है ना, क्या हो गया, हाफ जो है हमारा, चाहे वो अपर हो या लोअर हो, दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, सिर्फ 16 हो रहे हैं। लेकिन हमको दोनों के काउंट करना है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने होंगे, 32 हो जाएंगे। आपके जो परमानेंट टीथ का सेट का नंबर है कितना है, 32। वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब गाइस देख लीजिए, देखो इंसाइजर जो होते हैं कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। मतलब वही जो मिल्क टीथ में हुआ करते थे, वही इंसाइजर्स यहाँ पे सेम है। केनाइंस भी आपके सेम है, लेकिन दो चीज़ों को आपको याद रखना है कि जो मोलार्स थे वो वहाँ पे कितने थे गाइस, वहाँ पे 8 थे, और यहाँ पे कितने हैं, 12 है। और साथ ही साथ जो प्रीमोलर्स वहाँ पे 0 हुआ करते थे, वो यहाँ पे कितने हैं, 8 है। सो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हो, लोअर जो की इमेज दे रखी है यहाँ पे, और अपर जो की इमेज दे रखी है। ये अपर जो में जो हमने देखा था पैलेट क्या होता है, तो पैलेट ये हो रहा है, होता है, ये आपको दिख रहा है, इसको रूफ कहा जाता है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, रूफ कहा जाता है। वो इस तरीके से क्या होते हैं, आपके दांत होते हैं। तो यू विल बी एबल टू सी हियर, देखो देखो, ये 2 दांत हो गए, 2 क्या हो गए, इंसाइजर्स हो गए, है ना। ये किस में है, लोअर जो में है। और ये कितना है, हाफ वाला पार्ट है, अगर हम देखें तो क्या है, हाफ पार्ट है। तो हाफ पार्ट के 2 इंसाइजर्स इधर हो गए और 2 इधर हो गए, ठीक है। तो एक जो में कितने होते हैं, एक लोअर जो में 4 होंगे इंसाइजर्स, और अपर जो में 4 होंगे। देखो केनाइंस जो है कितने हैं, अपर जो में भी 2 हैं और लोअर जो में भी 2 हैं। यू विल बी एबल टू सी हियर दैट एक ये है और एक कौन सा है, एक ये है। यहाँ भी क्या है, एक ये है और एक ये है, दोनों क्या है, कैनाइंस है। तो इन दोनों को मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। अब प्रीमोलार्स की बात करते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो 1 2 1 2, आप भी देखिए यहाँ पे 1 2 1 2, तो ये कितने हो गए, प्रीमोलार्स 8 हो गए, ऐसे दोनों जो के मिला के। और अब देखिए गाइस, जो मोलार्स है, ठीक है, जो कितने हुआ करते थे, परमानेंट सॉरी मिल्क टीथ में 8 हुआ करते थे, वो क्या हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। तो 12 किस तरीके से हुए गाइस, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 किस में है, लोअर जो में, और 6 ही किस में है, अपर जो में। दोनों को ऐड करेंगे तो मोलार्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज द डेंटल फॉर्मूला, द डेंटल फॉर्मूला इज दी 2123 बाई 2123, दिट इज व्हाट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन दी ह्यूमंस, जिसमें हम कितने हैं, हाफ अपर जो में कितने हैं, इंसाइजर्स 2 है, और हाफ लोअर जो में भी कितने हैं, 2 हैं। इंसाइजर्स कितने हो गए, तो 2 है हाफ अपर जो में और 2 है हाफ लोअर जो में। कैनाइंस कितने हैं, 1 1 है। पीएम कितने हैं, मतलब प्रीमोलार्स कितने हैं, 2 2 है। और कैनाइंस कितने हैं, 3 3 है। और इसको हम क्या करेंगे, ये हाफ जो की बात हुई, ठीक है, हाफ लोअर जो और अपर जो की बात हुई। एक वाला जो हाफ है वो बचा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको टोटल नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर हमको मिलते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया क्या, कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है, कौन कौन सी उसकी स्टेप्स होती है। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, मतलब उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसकी कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है। उसके डायग्राम से के थ्रू हमने समझने की कोशिश किया कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ आपकी कौन सी प्रोसेसेस, एसिमिलेशन एंड इजेशन की प्रोसेस एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने क्या देखा गाइस, उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मतलब जो हायर एनिमल्स है ह्यूमंस में, उसमें किस तरीके से देखा। हमने एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट किया, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है।
एक लॉन्ग होलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से हमने कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अभी तक क्या कर लिया है यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। दिस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर व्हाट, हमने कौन कौन से को चेक कर लिया है अभी, माउथ, बक्कल कैविटी, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग, दैट इज हम स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस से। ईसोफेगस से स्टार्ट करने के बाद हम क्या कहाँ तक जाएंगे, पहले लार्ज इंटेस्टाइन तक समझेंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स जो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो सिक्रीट करते हैं, वो किस तरीके से वो आपको हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस में उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो फूड को कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इस चीज़ों को हम कहाँ समझेंगे, अगले वाले लेसन में, इन द पार्ट 6 ऑफ दी दिस कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी केमिकल डाइजेशन, मतलब किस तरीके से एंजाइम्स का क्या रोल होता है, कैसे एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं और कहाँ कहाँ सिक्रीट होते हैं, उनका रोल क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो गाइस ज्वाइन मी इन द नेक्स्ट सेशन, एंड आपको क्या हो सके अगर आपको कोई डाउट हो इस सेशन के बारे में, सो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट, यू कैन आस्क मी ऑन दी यूट्यूब कमेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको क्या हो सके फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। आपको क्या सब कुछ जो है आपकी क्लास 10 के लिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, तो आपको वो आगे भी मिलता रहे, उस चीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई अपडेट्स जो है आने वाली किसी भी वीडियोस की वो मिस ना हो, उस चीज़ के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ गाइस आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस या अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात है गाइस अनअकैडमी प्लस की, तो आपको वापस से मैं बता देता हूँ कि प्लस के क्या क्या फ़ायदे हैं। कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, उसके बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा क्लासेस का, उसके साथ साथ आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मतलब आपको पूरा सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। उसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस कराए जाएंगे, एंड देन आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी हर सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमको कॉन्फिडेंस लेके आना है, वो सब चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर सिखाई जाएगी। सो गाइज दिस ऑल द थिंग्स, ठीक है, आपको क्या करेगी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और आपको वहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से क्या है हर चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो आप यूज़ कीजिए मेरा कोड सब्सक्रिप्शन, अगर आप लेते हैं आप लीजिए सब्सक्रिप्शन, आपको वहाँ पे पढ़ने में अलग ही मज़ा आने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय द learning over there in the plus platform, so you can use my code that is DGCBSE. This will give you the instant 10% discount on the amount, and you can enjoy the benefits by using my referral code. So guys, this is all from my side for today, and thank you so much for the watching the video, and bye bye guys, see you soon, take care.